भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 2024 का 20वां संस्करण का समापन सफलतापूर्वक हो गया। यह मिलिट्री एक्सरसाइज साल 2004 से हर साल भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी आयोजित होती आ रही है। क्या मायने हैं इस युद्धाभ्यास के, क्यों खास रहा एक्सरसाइज का 20वां संस्करण? आज सक्षम भारत में चर्चा होगी इसी पर। देश का दम, सेना के जवानों का जोश, दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह खत्म करने का जज्बा और थार के रेगिस्तान में हर परिस्थिति से लड़ने का जुनून। जी हां, ये नजारा था राजस्थान के बीकानेर में चले देश के सबसे विशाल युद्धाभ्यास का, जहां भारतीय सेना के जांबाज अमेरिका के सैनिकों के साथ रण के मैदान में उतरे और अपना दमखम दिखाया। 9 सितंबर 2024 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास 2024 22 सितंबर तक चला। दोनों देशों के सैनिकों ने काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ऑपरेशंस का अभ्यास किया। It's my pleasure to be here today as the Commanding General 11th Airborne Division. We've had brigades worth of soldiers that are here participating in Exercise Utabas, the 20th anniversary of Exercise Utabas, which just really celebrates a great partnership between the Indian Army and the American Army. And for us, this has just been a great opportunity to get our soldiers together to exchange both ideas as well as procedure, but then train together as well. And we found that, of course, we've got a lot in common as the two largest democracies. But then down at the individual soldier level, the way the soldier thinks, the way the soldier acts, just a great opportunity to exchange ideas and really drive home the partnership between the two of us. Exercise Yuddhabhyas 2024, the 20th edition, has been a milestone as far as the joint operations and interoperability between the two largest democracies and the two largest armies are concerned. And having gone through the exercise, we are confident that both the armies are fully capable of executing the joint missions under the UN mandate, taking care of the global security scenario. And it's been professionally very satisfying to see both the armies having a connect at the soldier-to-soldier level and also the integration of the advanced weapon system of both the countries. We went through multiple scenarios which both the armies could be called upon to execute under the UN mandate in different parts of these hotspots that are emerging in the world. And what we found was what General Hilbert has already alluded to, we have a lot in common. So having concluded the exercise, I wish to compliment all the participants, the American soldiers and of course our own Indian soldiers for a phenomenally professional conduct. महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने हथियारों की तकनीकें साझा की और दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान फायर और मूवमेंट ड्रिल, क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग और काउंटर होर्न ड्रिल का बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया। इस दौरान दोनों ही देशों ने अपने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर बमबारी किए। अमेरिका के 11 एयरबोर्न डिवीजन के 600 सैनिक और भारतीय सेना की 9 राजपूत बटालियन के 600 सैनिकों ने एक साथ भविष्य के कई युद्धक आयामों पर काम किया।
the Indian-U.S. relationship is an extremely vital and important relationship. We've been training together for years, and this is what's really building our interoperability. It's helping to reinforce our posture and our presence, and it's building a capability between our two armies that is rock solid. So Yudhabhyas is our opportunity to really work on building interoperability, really building relationships, understanding our cultures and our capabilities, and then just really honing our skills as militaries. So it's an honor for the 11th Airborne Division to be here and to participate in this exercise, and we look forward to the next few weeks of training. ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2 चरणों में आयोजित की गई। पहले चरण में दोनों दलों ने युद्धाभ्यास और ट्रेनिंग को पूरा किया, जिसमें उनकी संयुक्त संचालन क्षमता को सुधारने पर पूरा ध्यान केंद्रित रखा गया। दूसरे चरण में, जिसे सत्यापन चरण कहा जाता है, उसमें ट्रेनिंग को संयुक्त अभियानों की एक चेन के माध्यम से व्यवहार में लाया गया, जिसमें रोड ओपनिंग ड्रिल, घेराबंदी और तलाशी अभियान खास करके शामिल था। युद्ध अभ्यास के दौरान सभी सैनिक रणनीति से दुश्मन को उसी के घर में घुसकर उन्हें मारने तक रणभूमि में डटे दिखे। इस महाअभ्यास में हेलीबॉर्न और एयरबॉर्न ऑपरेशन के जरिए स्पेशल कमांडोज मैदान में उतारे गए। यह अभ्यास एक भव्य लाइव फायर प्रदर्शन के साथ देखने और महसूस करने में अद्भुत था। आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित युद्धाभ्यास ने संयुक्त राष्ट्र के अर्ध शहरी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस अभ्यास में शारीरिक फिटनेस, सामरिक अभ्यास और दोनों सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, तकनीकों और प्रक्रियाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया गया। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस एक्सरसाइज का हिस्सा हूँ, मेरी बटालियन इस एक्सरसाइज का हिस्सा है और हम इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में यहाँ पे खड़े हैं। और आज से 20 साल पहले in 2004 the first edition of this exercise was conducted at Warangte, Manipur, and I'm really proud to inform you that during that time my battalion was the one which participated in that exercise. जो पहला एडिशन हुआ था उसमें मेरी बटालियन थी जिसने पार्टिसिपेट किया था और 20 साल बाद दोबारा हमें मौका मिला है। So after 20 years again I stand here that the opportunity which has been given to me to conduct the training with the US Army in the counter-terrorism operation in the semi-desert terrain in the Mahajan Field Fire Range under the UN Charter. So this exercise basically will involve the joint operation, the tactical drills and the live fire exercise. इस exercise के दौरान हम लोग कैसे किस प्रकार से joint operation conduct करते हैं, साथ में कैसे live firing के दौरान एक infantry battalion move करती है और अपना कार्रवाई करती है, उसके बारे में सीखेंगे। And I'm saying given that this exercise will further strengthen the bond which we share between the armies and will further solidify the relationship which we hold and also enhance the interoperability between the two countries. मैं आशा करता हूँ कि दैट जो एक्सरसाइज है वो हमारी रिलेशनशिप जो कि हमारे दोनों देशों के उसको फर्दर सॉलिडिफाई करेंगे और हमारी दोनों आर्मी को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं एक साथ मिलकर, उसके बारे में सिखाएंगे। इस युद्धाभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर से लेकर मिसाइल तक हमले किए गए। अमेरिकी M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोप के धमाके पूरी फायरिंग रेंज में दूर दूर तक सुनाई दिए। साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर और अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर से दोनों सेनाओं के सैनिक अभ्यास में दुश्मन के ठिकानों पर उतरे और पिनाका मिसाइल से 25 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया। इसके अलावा C-130 और Mi-17 प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके एयरबॉर्न और हेलीबॉर्न ऑपरेशंस भी किए गए। एक लाइव फायरिंग अभ्यास भी आयोजित किया गया, जिसमें पिनाका, हिमर्स तोपों जैसी लंबी दूरी की मारक क्षमता का उपयोग कर लक्ष्यों को बेअसर किया गया। जिसके बाद अंतिम घेराबंदी और तलाशी अभियान में सटीकता और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया गया।
This exercise is not only about the strategic partnership which has been growing between our two armies, but also about our shared commitment towards global peace, security and stability of the world. This year, the complete youth abhyas is being held in Mahajan Field Firing Ranges, which provides us an ideal backdrop for honing our synergized ops in an all-arms scenario. The focus of this exercise is on the UN peacekeeping mandate and also imbibing the best practices to enhance our interoperability. This exercise also is not only about sharing the best tactics, but also about fostering our deep and lasting bonds of trust, friendship and camaraderie between the forces. युद्धाभ्यास के अंतिम 72 घंटों में दोनों सेनाओं के सैनिकों ने वास्तविक युद्ध की तरह मिलकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इस दौरान अमेरिकी सेना की हॉविट्जर तोप को दोनों सेनाओं के सैनिकों ने संयुक्त रूप से इस्तेमाल किया और दुश्मनों के ठिकानों को टारगेट किया। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। सबसे खास बात यह रही कि इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए आई अमेरिकी सेना की टुकड़ी में एक भारतीय मूल की कैप्टन दुर्रानी भी शामिल हैं, जिनके पूर्वज भारतीय थल सेना में रहे हैं। कैप्टन साइमा दुर्रानी अमेरिकी सेना की सिविल अफेयर्स अधिकारी हैं। उनका मुख्य काम राजनयिक और सिविल सेना संबंधों को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में उन्होंने भारत अमेरिका की दोस्ती को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि वो अमेरिकी कैप्टन होने के साथ साथ यूपी के 2 बड़े शहर लखनऊ और रामपुर से ताल्लुक रखती हैं। Hello, I'm Captain Saima Durrani, US Army के साथ में यहाँ पे I'm for the first time पहली दफा मैं इंडिया आई हूँ। बड़ी खुशी हुई है। Thank you so much for having us. It's been amazing. I've always dreamed to come to India. और जब I found out about this mission, so I said, you better sign me up. I'm going. So the mission has been really wonderful. Got to meet all kinds of people from all different areas of India. और actually मेरी जो family हमारे ताल्लुकात है लखनऊ और रामपुर से, and हमारे अभी तक हमारी family वहाँ पे है मौजूद in Rampur especially. तो I got to meet them for the first time. आपकी फैमिली अमेरिका कब गई? 1960s में। मेरे जो दोनों वालिदैन डॉक्टर्स हैं, तो 1960s में प्रेसिडेंट कैनेडी ने वहाँ पे he opened the laws to invite more Indians and those from South Asia to come and join the medical workforce. तो इसलिए फिर मेरी पैदाइशी वहाँ पे हुई। आप कब से आर्मी में और आर्मी में क्यों आए? मैं यूएस आर्मी में एक्चुअली मेरे जो दादा परदादा परदादा सब इंडियन फौज में so I belong to an army family and it's just something that बचपन से मेरे जो हमेशा जो सब all the girls were getting dolls, Barbies वगैरह, मुझे वो सब GI Joes और मुझे उससे बहुत I wanted to play with those instead. इंडिया पहली बार ही आए? जी, ये मेरी पहली बार इंडिया में। दादा भी मिलिट्री में थे? जी, वो पंजाब रेजिमेंट में एंड हमारी जो परदादा वो भी पंजाब रेजिमेंट में। So it's now I've been in the US Army for about 16 years now. भारत और अमेरिका की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन के कई नमूने इस युद्धाभ्यास के दौरान पेश किए, जिसमें युद्धाभ्यास के अंतिम दिन भारतीय सेना के प्रशिक्षित बाज अर्जुन ने सर्विलांस का एक अलग ही तरीका सबके सामने रखा। ऐसा माना जा रहा है कि यह तकनीक आने वाले समय में आतंकवाद के नाम नया तो नहीं पर सटीक जवाब जरूर माना जाएगा। पंछी, नदियां और पवन के झोंके को कोई सरहद नहीं रोक सकती है और इस बात को सच कर दिखाया बाज अर्जुन ने। ऑपरेशन में युद्धाभ्यास के अंतिम दिन भारतीय सेना के प्रशिक्षित बाज अर्जुन ने सर्विलांस का जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान बाज अर्जुन के सिर पर कैमरा और पीठ पर GPS चिप लगी हुई थी। इसके बाद बाज ने
गांव में चक्कर लगाकर आतंकियों की सटीक पोजीशन की लाइव जानकारी दी। जंग का मैदान हो या किसी देश की सरहद, वहां की सेना अपनी सीमा पर दुश्मन की नापाक हरकत का जवाब देने के लिए सक्रिय रहती है। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता। सेना को पहले से निगरानी रखनी पड़ती है कि सीमा के उस पार दुश्मन की मूवमेंट क्या है। अब ये काम भारत का जाबाज परिंदा करेगा। अर्जुन जैसे ही उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकाने के ऊपर पहुंचा, वैसे ही उसके सिर पर लगे कैमरे ने उसके हैंडलर को आतंकी ठिकाने की तस्वीरें भेजना शुरू की। बाज पर लगे कैमरे से जानकारी मिलने के बाद सेना के जवानों ने उस बिल्डिंग को घेर लिया और कुछ देर की फायरिंग के बाद सेना के जवानों ने इन आतंकियों पर काबू पा लिया। भविष्य की जंग इस कन्वेंशनल वॉर से बिल्कुल अलग होगी। स्पेस वॉर, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें अब युद्ध में बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। युद्धाभ्यास एक काल्पनिक युद्ध की तरह होता है। असली जंग की तरह ही गोला बारूद का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। टारगेट सेट किए जाते हैं। आतंकी ऑपरेशन के लिए डमी आतंकी ठिकाने बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर ऐसे किसी भी युद्धाभ्यास के पहले एक बड़ी तैयारी होती है। और जब यह युद्धाभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर हो रहा हो तो बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह है एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज। समापन समारोह में दोनों सेनाओं के उत्कृष्ट सैनिकों को सम्मानित किया गया और उनकी सांस्कृतिक और सैन्य विरासत को भी दिखाया गया, जिससे दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित हथियार प्रणालियों का सेना ने प्रदर्शन किया। अमेरिकी सेना की तरफ से कहा गया कि युद्ध अभ्यास 24 भारत और अमेरिका के रक्षा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया और वैश्विक आतंकवाद विरोधी अभियान में योगदान दिया। इस जॉइंट एक्सरसाइज का उद्देश्य है दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाना। संयुक्त अभ्यास से रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा, जिससे दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। भारतीय सेना समय समय पर महाजन के फील्ड फायरिंग रेंज में नियमित अंतराल पर कई स्तर के युद्धाभ्यास करती रहती है, लेकिन यह अपने आप में बेहद विशाल युद्धाभ्यास है, जहां सुनिश्चित किया जाता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, सेना सदैव लड़ाई के लिए तैयार है। यह युद्धाभ्यास सेना की तैयारी और क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दुश्मनों को दिखाता है कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।